ہے تیری شہادت ہے حسین، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین جو ہے صرف اور صرف دین کی خاطر پورے خاندان کو لٹا دیا، اور جب پورا خاندان لٹ گیا ایسے وقت میں تنہا صرف اور صرف زین العابدین آپ کی صاحبزادے بچے اور عورتوں کا قافلہ بچا۔ 72 سر، کتنے؟ 72 سر جو جام شہادت نوش فرما چکے، 72 سروں کو 72 نیزے پر لٹکایا گیا، اور 72 نیزوں پر لٹکانے کے بعد جب حضرت زین العابدین کربلا سے روانہ ہو رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت 72 سر تھے، تنہا زین العابدین۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اور غور و فکر کریں کہ جس خاندان کا 72 شخص شہید ہو چکا ہو، اس وقت ایک تنہا مرد اگر زندہ ہو تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اس وقت 30 سال کی عمر میں اگر کسی کے بال سفید ہوئے ہیں تو اس ذات کو دنیا زین العابدین کہتی ہے۔ یہ بہت جلد بوڑھے ہو چکے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں، جب بڑھاپے کی عالم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے وقت میں آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگائی گئی۔ بیڑیاں لگانے کے بعد عمر بن سعد کہا اب آپ مدینہ منورہ کی رخ کریں۔ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہیں، قافلہ لے کر کے جب روانہ ہوتے ہیں، عمر بن سعد جو ہے آگے آگے چلتا ہے، اور زین العابدین کے پیٹھ پر کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا آپ بوڑھوں کی طرح جھک کر کے کیوں چلتے ہیں؟ کہا ان بدبختوں نے مجھے گلے میں اتنی وزن بیڑیاں زنجیریں ڈال دی ہیں کہ مجھے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے لوگوں نے، اس لیے میں جھک کر کے چل رہا ہوں۔ حضرات، لوگ جب اتنا پوچھنے کے بعد جب جھک کر کے چلتے ہیں تو لوگ بدبختوں نے کوڑے مارتے ہیں، کوڑے مار مار کر کے آپ کا پیٹھ لہو لہان کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہی زین العابدین ہیں۔ جب چلتے چلے جا رہے ہیں، اچانک راستے میں ایک بوڑھی عورت ملتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی ہے، اے بادشاہ، تو ہی لگ رہا ہے، تو بادشاہ لگ رہا ہے، ذرا یہ بتا تو طبیب ہے، تو حکیم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مذاق اڑاتا ہوا زین العابدین کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو طبیب نہیں ہوں، لیکن وہ دیکھو جو پیچھے جھک کر کے چلے آ رہے ہیں وہ طبیب ضرور ہیں۔ جب وہ بوڑھی عورت زین العابدین کی طرف آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا آپ طبیب ہیں؟ زین العابدین فرماتے ہیں ہاں میں بھی طبیب ہوں، میرا خاندان بھی طبیب ہے، میرا باپ بھی طبیب تھا اور میرا نانا بھی حکیم ہے۔ حضرات، وہ بوڑھی عورت جب سنتی ہے تو فرماتی ہے
अमर बिन साद से, जरा मेरे घर पे मेरा एक ही लड़का है, एक ही साहबजादा मेरा है, वो भी बीमारी के आलम में मुब्तला है, जरा आप अगर इजाजत दें। अमर बिन साद से इजाजत तलब करती है और कहती है कि अगर आप इजाजत दे दें तो इस तबीब को मैं अपने घर तक लेकर के जाओ। हजराते गिरामी, इतना सुनना था। वो औरत जब अमर बिन साद से इतना पूछती है तो अमर बिन साद कहता है, ये लो, जो हाथ में हथकड़ियां लगी हैं इसकी चाबी लो और जा करके उसको खोल दो, ताकि ये ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे घर तक आराम से जा सके। हजरात, ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मुझे इस चाबी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनो। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं। वो बेड़ियां जो थी, वो लोहे की जंजीरें जो थी, जंजीर जो थी, वो पिघल जाया करती है। पिघलने के बाद वो बेड़ियां हाथों से खत्म हो जाती है। ज़ैनुल आबिदीन उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते हैं। जैसे ही उस बूढ़ी औरत के घर के करीब पहुंचने वाले होते हैं, अंदर से आवाज आती है, खबर ये आती है, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनो सुनो, मेरे घर में जो बच्चा बीमार था वो आपके आने से पहले पहले वो दुनिया से जा चुका है, वो इंतकाल कर चुका है। आप जहां से आए हैं उसी मकाम पर चले जाए। हजरात गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुनो, अगर मैं यहाँ तक आ ही गया हो तो मुझे अपने घर के अंदर तक ले चलो, मुझे दिखाओ कि आपका बच्चा किस पोजीशन में है, मैं जरा उसके चेहरे की ज़ियारत करूंगा। ज़ैनुल आबिदीन को वो बूढ़ी औरत जो है अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, उसके चेहरे से पर्दे को हटाते हैं। पर्दे को हटाना था, पर्दे को हटाने के बाद कुछ दुआ करते हैं। वो बच्चा जो है, सब उसके घर के जो औरतें थी, उसकी बहनें जो थी, वो गुड़िया पैर की तरफ बैठ करके रो रही थी कि हाय, मेरा एक ही भाई था, मुझे इसी का सहारा था, आज ये भी दुनिया से जा चुका है, अब मेरा पुरसाने हाल कौन होगा, मेरा मददगार कौन है, मेरा पुरसाने हाल कौन बनेगा। हजराते गिरामी वो रो रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ बहन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, सुनो सुनो, उस बच्चे की चेहरे से, उस बच्चे के चेहरे से ज़ैनुल आबिदीन पर्दे को हटाते हैं। जैसे ही पर्दे को हटाना था, फरमाते हैं, ऐ बच्चा, तेरे घर की औरतें रो रही हैं, तेरी बहनें रो रही हैं, तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता है। इतना जुमला फरमाना था, ज़ैनुल आबिदीन का फरमान था। वो बच्चा खड़ा हो जाता है। हजराते गिरामी, जब वो बच्चा खड़ा हो गया, जब खड़ा हो गया, उसके घर वालों में सुकून पैदा हो जाता है। वो बूढ़ी औरत सवाल करती है, कहती है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन सुनो सुनो, यहाँ तो तुम मेरे बच्चे को जिंदा कर दिए हो, वहां 72 नेज़ों पर 72 सर लटक रहे हैं, वहां क्यों नहीं जिंदा कर रहे हो। ये जहन में उसके सवाल आ गया। जैसे ही सवाल आना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ठीक है, अगर तुझे सवाल करना ही था तो चल, तेरे सवाल का जवाब मैं उस जगह पर दूंगा जहां से मैं तेरे घर आया हो। हजरात गिरामी, ज़ैनुल आबिदीन जो है उस बूढ़ी औरत को, जहां इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था, अल्लाह अकबर, ज़ैनुल आबिदीन उस बूढ़ी औरत को उसके बारगाह में लाते हैं। और जैसे ही इमाम हुसैन के बारगाह में, सर के बारगाह में लाते हैं, क्या फरमाते हैं कि देख, अभी इमाम हुसैन का सर आगे की तरफ था और वो औरत पीछे की तरफ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ इमाम आली मकाम, ऐ मेरे अबू जान, सुनो सुनो, इस बूढ़ी औरत का कुछ सवाल है, इसका जवाब देना है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, क्या इसका सवाल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इसका सवाल यह है कि मेरे घर पर एक बच्चा मर गया था, उसे आपने
जिंदा कर दिया है, तो क्या इसके घर में, आपके घर में 72 लोग जख्मी हैं, 72 लोगों का सर जो है वो नेज़े पर लटक रहा है, आप इनको क्यों नहीं जिंदा कर पा रहे हैं? जैसे ही इतना जुमला सुनना था, इमाम आली मकाम का सर जो है उस बूढ़ी औरत की तरफ घूमता है, और जैसे ही घूमना था वो सरे मुबारक से बज़बाने हाल आवाज आती है, कुरान मुक़द्दसा की नेज़े पर सर है लेकिन कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी औरत, तुझे पता चला कि नहीं, अरे जो मर जाया करता है उसे जिंदा करने की जरूरत होती है, अरे जो जिंदा है उसे जिंदा करने की क्या जरूरत है? तेरा बेटा जो था वो मर गया था, इसलिए मैंने उसे जिंदा किया। इमाम हुसैन जो है वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा है।